course में what are the work approaches of due diligence, then how to conduct due diligence and what are the contents of due diligence report. तो इतना सा ही है कि what are the content of due diligence report में क्या है, that is executive summary, introduction, what is the background of the target company, objective क्या है due diligence, terms of reference and scope of verification, brief history क्या है company की, what is the shareholding pattern, observation on the review, assessment of management structure, assessment of financial liability, how will you do the assessment of valuation of assets, comments on properties, terms of list, line and encumbrance, assessment of operating results, assessment of taxation and statutory liability, how will you do the assessment of possible liabilities on account of litigation, legal proceeding against the company, assessment of net worth, interlogging investment and financial obligation with group, association, company, amount receivable subject to litigation, any other likely liability which is not provided for in the books of account. SWOT analysis, comment on future projections, status of charge line, mortgage assets and property of the company, suggestion on the ways and means, including the affidavits, indemnity to be executed to cover. देन हमारा आ जाता है हाउ टू कंडक्ट, कैसे हमें कंडक्ट करना होगा ड्यू डिलिजेंस. आपको स्टार्ट करना है चीजों को विद ओपन माइंड. डू नॉट अज्यूम दैट एनीथिंग रॉन्ग विल बी फाउंड एंड लुक फॉर व्हाट नीड टू बी डन इज टू आइडेंटिफाई द ट्रबल स्पॉट एंड आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन. गेट द बेस्ट टीम ऑफ द पीपल. इफ यू डू नॉट हैव द ग्रुप ऑफ पीपल इनसाइड योर फर्म देन यू कैन डू द टास्क, यू कैन हायर द सेम. तो हायर कर लीजिए बाहर से. व्हेन हायरिंग सच प्रोफेशनल लुक फॉर देयर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड इन द इंडस्ट्री. Get help in all the areas like finance, tax, accounting, legal, marketing, technology and any other relevant to the assignment so that you get a 360-degree view of the acquisition candidate. Talk to customers, supplier, business partners and employers are a great resource. Take a risk management approach. So while you want to do your research, you also want to make sure that you do not antagonize the team of a people of the target by them with the loads of questions. Prepare a comprehensive report detailing the compliance and substantive risk issues. तो ये भी हमें लर्न करना है. What will be the work approach क्या होगा ड्यू डिलिजेंस का. तो हमें क्या करना होगा, रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल submitted by the target company, then assess कीजिए the business first and by a site visit. Working through a due diligence process with the acquisition company or investor by defining the key areas and help prepare an offer based on completion due diligence. तो आइडियली देखो, अगर हम देखा जाए कि हमने ड्यू डिलिजेंस में हमें क्या क्या लर्न करना है, तो मैं लर्निंग मैं बताती हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न एक्चुअली. तो सबसे पहले जब हम ड्यू डिलिजेंस पढ़ते तो हमें कुछ बेसिक आइडिया होने चाहिए, जैसे कि ड्यू डिलिजेंस का मीनिंग. बिल्कुल नॉर्मल जो होना चाहिए, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, मटेरियल फैक्ट है, वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल है, ये सारी चीजें. एक जो जनरल डेफिनेशन है वो एक ड्यू डिलिजेंस की आनी चाहिए. फिर उसके बाद पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है. ड्यू डिलिजेंस क्या चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा भी कोई कर सकता है. डिफरेंस बिटवीन ड्यू डिलिजेंस एंड अदर ऑडिट. तो ये चीजें भी ध्यान रखने वाली है कि डिफरेंस क्या है. उसके बाद हमारा आता है देयर आर मेनी, व्हाट आर द रीजन फॉर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस. रीजंस क्या है कि हमें डिल किलर इफेक्ट पता लगाने हैं. व्हाट बिजनेस इज, हम देखेंगे कि बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी. रीजंस फॉर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस. रीजंस क्या है, हम क्या बनेंगे, रीजंस क्या है फॉर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस को करने के क्या रीजन है. बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी. वेरीफाई करे ट्रांजैक्शन, कंप्लाई करे इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन क्राइटेरिया के साथ. गेन करे इंफॉर्मेशन जो कि यूजफुल हो फॉर वैल्यूएशन असेट्स, डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशन, वारंटीज, नेगोशिएटिंग प्राइस कंसेशन एंड ऑल. फिर हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस में क्या है, विद द कोड सीपीटी फाइल. सीपीटी फाइल और उसके अलावा भी हमें एक और का उसमें फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का डिटेल भी पढ़ना है. फिर इसी में क्लासिफिकेशन में फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का हमें डिटेल में पता होना चाहिए. बाकी का 1 लाइनर 2 लाइनर भी चलेगा, बट उसका हमें डिटेल में पता होना चाहिए. उसके बाद इन ऑर्डर टू ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस कैन इंक्लूड ऑल और फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन. ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
फॉर इंडिविजुअल एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन। इसके जो भी पॉइंट है वो हमें आने ही चाहिए। उसके बाद ये सारा हो गया। फिर हमें फुल फ्लैज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस क्यों किया जाता है? फुल फ्लैज जो एक टॉपिक है, फुल फ्लैज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, इसका रीजन भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी एंड बैकग्राउंड, वो सारा इसी में आ जाएगा। कैश फ्लो एक हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी एंड देन एक ये जो टॉपिक है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल, ये इसी के अंदर है। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।